السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی نے کیڈٹ ٹرینیز پولیس کانسٹیبلز کے نومنتخبہ پولیس کانسٹیبلز کی تربیت کیمپ کا ہیڈ کوارٹر پریڈ گراؤنڈ پیٹلا بروج میں افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پولیس کو تمام طرح کی سہولتیں مہیا کی ہیں، جس کے باعث جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ تلنگانہ پولیس مقامی ہی نہیں بلکہ قومی سطح پر ٹریننگ لا اینڈ آرڈر کو مؤثر انداز میں برقرار رکھنے میں مہارت رکھتی ہے۔ اس کے باعث ریاست تلنگانہ معاشی طور پر مستحکم ریاست بن کر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ پولیس کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی پولیس کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے مستقل اقدامات کی ماہر ہے۔ بھینسا کے فساد کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ پولیس نے 4 گھنٹوں کے درمیان حالات پر کنٹرول کر لیا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا پولیس نے بھینسا میں جسمانی معذور شخص کو بھی حراست میں لے لیا ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ وہ معذور شخص ہے جس کی وجہ انہیں کوئی گزند نہ پہنچے، محفوظ مقام پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر کمشنر حیدرآباد سٹی پولیس سنجنی کمار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں آج سے 60-70 سال پہلے بھی 80 سال پہلے بھی لوگ یہاں ٹریننگ لیے ہیں۔ یہاں پر آج کانسٹیبل جو اپائنٹ ہوئے ان کا ٹریننگ کیمپ اسٹارٹ ہوا ہے، اور خاص طور سے ہمارے یہاں کے کمشنر سنجنی کمار صاحب موجود ہیں۔ بہت ایسے آفیسر ہیں، ہمیشہ بہت ایفیکٹو ایڈیشن لیا گیا ہے۔ ہمیشہ جہاں پر بھی لینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، سنجنی کمار صاحب خود ہمارے کمشنر صاحب بذات خود جا کر بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ مجھے پراؤڈ ہے۔ اور آج کی ٹریننگ کا جو آج افتتاح ہوا ہے، یقیناً جو بچے پولیس میں اپائنٹ ہوئے ہیں، نوجوان بچے، وہ کافی کوالیفائڈ ہے۔ بہت اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں پر، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے آنریبل CM صاحب تلنگانہ بننے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہت زبردست امپورٹنس دیا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر چونکہ اسٹاف کی کافی کمی تھی، 2015 کے اندر 10,000 پولیس کانسٹیبل اور سب انسپکٹر کا اپائنٹ کیا گیا، 16 تک ہوا، اور ابھی تقریباً 16,000 سے زیادہ پولیس کانسٹیبل اور سب انسپکٹر کا اپائنٹ کیا گیا ہے۔ آج ان کی ٹریننگ آج سے شروع ہوئی ہے، 4 ایریوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی۔ اس ٹریننگ پر ان لوگوں کو کانسٹیبلس کو 9,000 روپے کا ایک اسٹیفن دیا جا رہا ہے، اور سب انسپکٹر تلنگانہ و آندھرا پردیش کل جماعتی JAC کے کنوینر محمد مشتاق ملک نے اپنے ویڈیو پیام میں عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18 جنوری بروز ہفتہ شام 7 بجے شریعت ترمیمی قانون NRC NPR کی مخالفت میں کرسٹل گارڈن پلر نمبر 86 میں عوامی احتجاجی جلسہ عام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں اسے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک میں منعقد کیا جانے والا تھا، جس سے پولیس کی اجازت نہ ملنے پر جگہ تبدیل کرتے ہوئے کرسٹل گارڈن کر دیا گیا ہے، جس میں تمام جماعتوں، سیاسی، سماجی، ملی تنظیموں، یونیورسٹیوں کے طلباء، علماء، مشائخ نظام کے علاوہ دیگر بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس احتجاجی جلسہ عام میں دہلی کے مندوبین بھی شرکت کرتے ہوئے خطاب کریں گے۔ انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہوئے اس طویل مدتی احتجاج کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ عام ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک پر منعقد ہونے والا تھا، لیکن پولیس نے اس کو کرسٹل گارڈن پر کرنے کی منظوری دی ہے، تو کرسٹل گارڈن پر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب 18 جنوری کو یہ احتجاجی جلسہ عام منعقد ہوگا، جس میں تمام جماعتوں کے قائدین، علماء، مشائقین کے علاوہ دلت آرگنائزیشن، سوشل جسٹس کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن کے ساتھ یونیورسٹی کے طلباء یونین کے قائدین مخاطب کریں گے۔ اس کے علاوہ دلی سے کچھ مہمان بھی اس جلسہ عام میں جو حیدرآباد آ رہے ہیں، اس جلسہ عام میں شرکت اور مخاطب کریں گے۔ بہرحال یہ جلسہ عام اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ملین مارچ میں جس طرح آپ نے اپنے اتحاد، جوش، ولولہ اور پھر صدق دل سے اس احتجاج کا حصہ بنے ہیں، ہم کو یہ احتجاج اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ اس ملک میں ہماری بقا اور سلامتی کی ضمانت حاصل نہیں ہو جاتی۔ ہماری بقا اور سلامتی کی یہ لڑائی ہے، اور ملین مارچ سے لے کر آج تک ہم مستقل یہ لڑائی میں مصروف ہیں، اور یہ جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے جس میں تمام جماعتوں کے قائدین رہیں گے، اس کے علاوہ علماء اور مشائقین بھی رہیں گے،
तलबा अंजुमनें भी रहेंगी और गैर मुस्लिम जो जमातें हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी में मौजूद हैं, वो जॉइंट एक्शन कमेटी में वो तमाम जमातें समझिए कि इस जलसे आम को मुखातिब करेंगे। इसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी के में जो कायदीन मौजूद हैं वो कायदीन भी इस जलसे आम को मुखातिब करेंगे। बहरहाल ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। पूरे जोश और अज़्म और हौसले के साथ मुस्तकिल हमको इस लड़ाई का हिस्सा बनना है। अपने घरों से निकलें, बल्कि मेरी दरख्वास्त है कि नमाज मगरिब क्रिस्टल गार्डन पर अदा करने की कोशिश करें। मगरिब की नमाज के फौरी बाद ये जलसे आम शुरू हो जाएगा और इस जलसे आम में आपको शरीक होना है, अपने एहतजाज को दर्ज करवाना है। खवातीन के लिए एक अलहदा इनक्लोजर बनाया जाएगा। खवातीन भी कसीर तादाद में इस जलसे आम में शिरकत करें। मेहदी पट्टनम क्रिस्टल गार्डन पिलर नंबर 86 पर यह जलसे आम बरोज हफ्ता 18 जनवरी को मुनक्किद हो रहा है। मेरी बात नोट कर लें, इससे पहले जो रिकॉर्ड गया है उसमें तारीख की कुछ गलती थी। 18 जनवरी बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब आपके सारे समझिए के काम छोड़ें और क्रिस्टल गार्डन पहुंचे। मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी कानून और NRC NPR के खिलाफ मोहम्मदाबाद 9 नंबर मस्जिद अशरफ करीम मुश्क महल किशन बाग में नफिल एतिकाफ रोज़ों खुसूसी दुआओं नमाज व अज़कार का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद सियाह कानून के शर से मुसलमानों, हरिजनों, गिरिजनों, पस्त अक़वाम और दीगर को महफूज रखना है। इस मकसद के तहत ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हैदराबाद व अल करीम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा 4 रोज़ा तिलावत कुरान, क़ुनूत नाज़िल आयत करीमा, नफिल एतिकाफ रोज़ा बाद नमाज ज़ोहर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुहिद मुबारक मुतबर्रिक महफिल बसदारत मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी की ज़ेर सरपरस्ती जारी है। इस मौके पर नायब सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल हैदराबाद डॉक्टर हिलाल आज़मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों ने अपने नज़्मुल ऐन से कोताही और रूगर्दानी की, अल्लाह की रज़ी को छोड़कर अपनी ज़िंदगी के मफादात के हुसूल में मुब्तला हो गए, जिसके बायस मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो रहे हैं। इन हालात में इस तरह की महफिल के ज़रिए अल्लाह से माफ़ी और क़ुर्बत हासिल की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़कूरा कानून और दीगर से मुसलमानों ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के पस्त अक़वाम के लिए ये मसाइल का सबब है। लिहाजा इन हालात में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हुए नमाजों का एहतमाम, कुरान ख़ानी, आयत करीमा, क़ुनूत नाज़िला, इस्तिग़फ़ार, रोज़े और इतिकाफ़ की महफिलों का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए। यह सिलसिला 4 दिन तक जारी रहेगा। इस दौरान नमाज तहज्जुद के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ अल्लाह की क़ुर्बत और रज़ा हासिल होगी बल्कि मसाइल का हल भी इनके ज़रिए बआसानी मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने इस तरह की महफिलों का जगह जगह मुनक़्क़िद करने का मुसलमानों को मशवरा दिया ताकि मौजूदा हालात में अल्लाह ताला की मदद नुसरत हासिल हो। उन्होंने इस कानून को सियाह कानून करार देते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो CAA NRC NPR को फौरी वापस ले। इस दौरान मस्जिद अशरफ करीम की इस महफिल में हिस्सा लेने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। करते हैं और हम ये गुजारिश करते हैं ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल और अशरफ अब्दुल करीम ट्रस्ट ये गुजारिश करता है कि हुकूमत हिंद जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले ले ताकि जो है हमारे मुल्क के अंदर अमन व सुकून हो। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि ये बिल क्यों आया है, क्योंकि हमारी जो मईशत है या हमारी जो मुआशरत है, जो हमारा समाज है, जो हमारे इक़्तिसादियात है, ये बिल्कुल मुल्क जो है कगार पर पहुंचा हुआ है। हुकूमत हिंद हर महाज के अंदर नाकाम है। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू और मुसलमान के दरमियान तफरका करना चाहती है, बांटना चाहती है। और यकीन मानिए ये जो है हमारा मुल्क एक ऐसा गुलदस्ता है जो कभी बढ़ता नहीं है और इसके बारे में ये है कि ये नफ़रत फैलाना चाहते हैं। मैं ये सारे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूँ कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं होता बल्कि नफ़रत को मोहब्बत से तब्दील करना चाहिए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि तमाम हिंदू और मुसलमान, तमाम बिरादरान वतन करिया करिया, बस्ती बस्ती अपनी तिजारत और अपनी मुलाजमत, अपनी यूनिवर्सिटियों और अपने कॉलेजों में और अपनी दरसगाहों में मोहब्बत को आम करें और आपस के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, आपस
आपस के अंदर एक दूसरे की मदद करें। इस वजह से ये हुकूमत जालिम हुकूमत है जो हमारे दरमियान मुल्क को बांटना चाहती है, हमारे दरमियान नफ़रत फैलाना चाहती है। हम नफ़रत को ख़त्म करने के लिए और उसी सब चीज़ों के लिए अल्लाह से मदद मांगने के लिए हम अल्लाह के घर में हाजिर हैं। और मैं इस चैनल के ज़रिए फिर एक बार हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ और इसी तरह सारे हिंदुस्तान के लोगों से मुतालबा करता हूँ कि जब तक ये बिल वापस न हो जाए, जब तक वह बिल वापस न लें, तब तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, तब तक हमारी ये दुआ भी जारी रहेगी। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है। इस वजह से हम अल्लाह से रुजू होते हुए और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस बिल को वापस ले ले। शुक्रिया। मुल्क में मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा कानून शहरियत तरमीम NRC और NPR के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज जारी हैं। इस कानून और दीगर को सारे मुल्क में अवाम दुश्मन दस्तूर के खिलाफ करार दिया जा रहा है और इस ज़िमन में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। इस तरह का एक एहतजाजी मुजाहरा टोली चौकी इलाके में अमल में आया, जिसमें अवाम ने शहरियत तरमीम कानून NRC और NPR को मुल्क के आइन के और दस्तूर के में दखलंदाजी करार दिया और मजहब की बुनियाद पर मुदव्विन करने पर मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस कानून और दीगर को फौरी वापस ले। ये जमहूरियत के मगायर है। मुसलमानों को इसमें शामिल न किया जाना मजहब की बुनियाद पर नाइंसाफी पर मुहित है। इसे गैर दस्तूरी करार देते हुए खामोश पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी जो अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। अवाम ने इस बात का मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करते हुए इस खवान एडिशनल कमिश्नर बराए ट्रैफिक अनिल कुमार IPS ने मेट्रो बाराक लर्निंग सेंटर चेलापुरा हैदराबाद में करीमनगर और खम्मम में सिविल बैच 2020 के 9 मुंतखबा कांस्टेबल्स के तरबियती प्रोग्राम का क्लीनिंग सेंटर चेलापुरा में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने पौधे भी लगाए। एडिशनल कमिश्नर बराए ट्रैफिक अनिल कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करीमनगर खम्मम के 249 मुंतखब हुए कांस्टेबल्स की तरबियत का आगाज किया गया है। ये ट्रेनिंग 9 माह तक जारी रहेगी, जिसमें इंडोर आउटडोर से मुतालिक जरूरी तरबियत दी जाएगी। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। మన సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ హైదరాబాద్ చెల్లాపూర్లో ఇది కరీంనగర్ ఖమ్మం నుంచి వచ్చినారు 249 క్యాడెట్ కానిస్టేబుల్కి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మన ప్రిన్సిపల్ గారు శ్యామ్ సుందర్ గారు అండ్ దెన్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ రత్నం గారు ఆధ్వర్యంలో ఇది ట్రైనింగ్ నెక్స్ట్ 9 months ఇక్కడ జరుగుతుంది. దాంట్లో ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ సబ్జెక్ట్ గురించి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అవుట్డోర్లో మెయిన్గా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్, వెపన్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఆర్మ్ కంబాట్
దెన్ ఫీల్డ్ టాక్టిక్స్ అది మొత్తం ట్రైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇండోర్లో సిఆర్పిసి, ఐపీసీ, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, స్పెషల్ లాస్ లైక్ ఎన్డీపీఎస్, డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్, SC/ST యాక్ట్, దాని మీద కూడా ట్రైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, ఐటీ గురించి అది మొత్తం ట్రైనింగ్ విల్ బి గివెన్. అదేవిధంగా మన సిటీలో చాలా ఈవెంట్స్ నెక్స్ట్ 9 monthsలో ఉన్నాయి. దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఆన్ ఫీల్డ్గా అక్కడ తీసుకొని అక్కడ ఆన్ స్పాట్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం, ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో 9 months ట్రైనింగ్ తర్వాత దే విల్ గో బ్యాక్ టు ది అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఖమ్మం అండ్ కరీంనగర్. की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं. ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.